Hi. So yesterday I completed 11 weeks of gym. So 11 हफ्ते हो चुके हैं now that I'm consistent with the gym. So 11 हफ्ते से without fail I've been hitting the gym and काफ़ी सारे ऐसे changes हैं जो कि मैंने खुद में अब realize करे हैं. काफ़ी सारे changes जो मेरी body में हैं जो कि मेरे mentally I've changed a lot. So this video and काफ़ी सारे ऐसे changes जो कि मैं अब going forward देखना चाहूँगा. If there are many errors too, mistakes जो कि मैं better कर सकता था in these 11 weeks. So yeah, so there are some changes that I've noticed and there are a few changes that I will commit to. Like there are a few things जो कि मैं आगे in my journey with gym ठीक करना चाहूँगा. So this video इसका पूरा purpose यही है कि I can document the best major changes that I've gone through जो कि मैंने खुद notice करे हैं and some I want to commit to a few changes, a few things going forward. So yes, this is I think the 6th video of the channel, 7th video I think, or 6th video. And yes, this is me completing 11 weeks of gym. So जो one of the best changes जो कि मैंने note करे हैं उनमें से I think best है कि I've become overall quite disciplined. So and there's no friction as such now as far as going to the gym is concerned. तो पहले क्या होता था, gym is now no more a task. It's part of my routine. It's a habit. It's a part of my life now. तो पहले ऐसा होता था कि I used to chalk out time for gym. ठीक है कि चलो 2 घंटे बचे हैं, 1 घंटा बचा है, जिम चले जाते हैं. After these 11 weeks, it is now a part of my schedule. It's a very important part of my schedule as well. So there's no friction with it. It's like कि भाई even if अगर energy नहीं है तो I'd like to go to the gym. It's just now ingrained in my schedule. So that's the first biggest change. Second is कि I'm more or less the same weight when I started. I started at like 65 kgs. Still I like fluctuate between 65 kg, 64 kg, 66 kgs. तो वो चलता रहता है. But best part is कि even with the same weight, मेरा body definition काफ़ी change हुआ है. So I've put on a lot of muscle, significant muscle gain, and मेरा strength बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. I started जब मैंने जिम स्टार्ट करा था, नॉट फर्स्ट वीक में नहीं, जब मैंने एकदम स्टार्ट करा था, सो आई स्ट्रगल्ड विद 10 kg or 12.5 kg dumbbell chest press. Yesterday when I finished, so now 25 kg dumbbell chest press is very easy for me, which is a great improvement. I'm personally very happy with it. So this is another change. Same body weight, greater muscle mass and much better strength. Apart from that, अब मेरा मसल मास बहुत बेटर हो गया. लाइक माई बॉडी इज़ इन अ ग्रेट शेप. जब मैं सुबह उठ के ब्रश कर रहा होता हूँ, सो आई लाइक लुकिंग एट द मिरर. दैट पार्ट ऑफ माई डे, जब मैं मिरर को देख रहा होता हूँ, जब मैं सुबह ब्रश कर रहा होता हूँ, दैट्स वेरी गुड. आई फील गुड अबाउट माई बॉडी नाउ, मच बेटर देन बिफोर. जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा मेंटल लाइक आई वॉजंट टू गुड मेंटली एज वेल. ठीक है, काफ़ी कुछ चल रहा था दिमाग में. वर्क वॉजंट टू गुड. And in general, relationships in general, not like dating वगैरह नहीं, but in general, सिर्फ dating वगैरह नहीं, but in general with friends, a lot of things were going haywire. कुछ चीज़ें बेकार जा रही थी, कुछ चीज़ें नहीं जा रही थी. So I was mentally quite, I wasn't at the best mental state. After these 11 weeks and even within the span of these 11 weeks, I've achieved a much better mental state. I feel mentally a lot better, happier in general. So that's another. इसके अलावा after 11 weeks मैंने एक sort of momentum gain कर लिया है with gym. And whenever you have momentum going on, whenever you are consistent with anything that you like, तो वो बहुत naturally it translates to other things in your life. For example, अब जब मैंने gym में थोड़ा consistency पा लिया, तो that consistency and momentum has naturally translated over to my work as well. Plus because of gym and thanks to gym, मेरा sleep cycle better हो गया है. Although मैं अभी भी सही टाइम पे सोने नहीं जाता हूँ, but sleep quality बहुत ज़्यादा improve हो गया है. So before these 11 weeks and the
एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वीक मेरा स्लीप का क्वालिटी बेस्ट नहीं था, ठीक है. आई वुड वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड इन जनरल काफ़ी मतलब स्लीप अच्छा नहीं होता था. एंड 3 चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटेन करनी होती हैं: स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज. एंड उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन एंड स्लीप होता है, एक्सरसाइज बाद में आता है. तो अगर आपका स्लीप अच्छा नहीं होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. तो मेरा स्लीप बहुत बेटर हो गया. इनफैक्ट आई हैव इन्वेस्टेड इन अ कपल ऑफ थिंग्स. ये काफ़ी वैनिटी है बट इससे मुझे काफ़ी मदद हुआ है स्लीप ट्रैक करने में. एंड आई फॉर द पास्ट आई थिंक 2 वीक्स नाउ मेरा स्लीप बहुत अच्छा गया है. देयर इज़ नो स्लीप डेट. मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा कि स्लीप डेट होता क्या है, आप स्लीप को बेटर कैसे कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट जिम की वजह से काफ़ी कुछ बेटर हो गया. अब फाइनल चीज़ है कि बिकॉज ऑफ जिम मेरा न्यूट्रिशन बहुत इंप्रूव हुआ है. ऑल्दो इट्स नॉट द बेस्ट, अभी भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं इन टर्म्स मतलब न्यूट्रिशन, एज फार एज न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न, बट पहले से तो बहुत बेटर है. सो मेरा खाना पीना बहुत अच्छा हो गया. सो दीज वर लाइक सम ऑफ द चेंजेस जो कि मैंने नोटिस करे आफ्टर दीज 11 वीक्स एंड बिकॉज ऑफ दीज 11 वीक्स. बट गोइंग फॉरवर्ड देर आर अ फ्यू चेंजेस जो कि मैं करना चाहूँगा. फर्स्ट इज़ कि I'd like to measure my growth more, ठीक है. तो I have a proper website, jatinpandey.site/body. तो jatinpandey.site/body पे I document my objectives with respect to the gym. मेरे को चाहिए क्या exactly, and I also document कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ एंड उन एक्सरसाइजेस का प्रोग्रेस क्या है कि मैंने कितना, हाउ मच कैन आई लिफ्ट नाउ, या फिर कितना चेंज हुआ है मेरे स्ट्रेंथ में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो गोइंग फॉरवर्ड वो पेज बहुत एक्टिव रहेगा. आई विल बी अपडेटिंग इट, आई बी राइटिंग देयर अ लॉट. एंड हर 2 या 3 दिन में, इवन आई ट्राई कि हर 2 दिन में या एवरी डे उसको अपडेट किया जाए. एंड जैसे ही आई हिट अ न्यू PR तो वहाँ पर वो अपडेट हो जाए. सो दैट्स द फर्स्ट. सेकेंड इज़ कि मेरा न्यूट्रिशन ऑल्दो इट हैज़ बिकम बेटर बट आई एम स्टिल नॉट मेजरिंग कैलोरीज, ठीक है. तो जब एक्सरसाइज की बात आती है तो इट्स ईजियर टू मेजर कि भाई टेबल पे लिख लिया कि ये एक्सरसाइज करनी थी और आप इतना एक्सरसाइज कर पा रहे हो, ठीक है. अब आप इतना वेट उठा पा रहे हो, मतलब दिस इज़ हाउ मच स्ट्रेंथ you've gained. दैट इज़ ईजियर टू रिकॉर्ड. बट जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो अभी भी आई डोंट नो कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या हैं, न्यूट्रिशन में क्या ज़रूरत है, मैं क्या चीज़ें जो कि गलत कर रहा हूँ. तो आई लाइक टू स्टडी मोर उस साइड पे, अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन बेटर. एंड प्लस उसको भी इफ़ आई कुड फिगर आउट कि इसको कैसे ट्रैक करना है, इसमें ग्रोथ कैसे मेजर करना है, तो आई विल बी बेटर. सो जस्ट स्टार्टिंग विद मेजरिंग की कैलोरीज को कैसे मेजर करा जाए, how much calorie do I need given my weight, etc etc. So going forward a great focus on nutrition as well, now that sleep has become better. Third is कि अभी भी ना क्या होता है कि अभी बज रहे हैं 7 I think 8:16 हो रहे हैं. So अभी 8:16 हो रहे हैं या 8:17 हो रहे हैं. तो होता क्या है, यूजुअली जब भी मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी डिप हो रहा है तो मैं जिम चले जाता हूँ. And this has been the case for I think 11th week, 8th, 9th, 10th, 11th week में यही चल रहा है, ठीक है. So there's no particular time to me going to the gym. But going forward जिम जाने का एक पर्टिकुलर टाइम होगा. जिम जाने का आई थिंक बेस्ट इज़ कि आप सुबह चले जाओ या फिर दोपहर को चले जाओ, क्योंकि कोई होता नहीं है. एंड ये जो टाइमिंग है आई विल सेलेक्ट अकॉर्डिंग गिवन कि कितने कम लोग होते हैं जिम में, ठीक है. द फ्रीयर इट इज़, जितने कम लोग उतना अच्छा, ठीक है. ऑल्दो आपके इंसेंटिव्स का व्यवहार होते हैं कि भाई लड़के आएंगे, ये होगा, बट जस्ट बिल्ड फोकस ऑन योर सेल्फ एटलीस्ट जिम में. तो आई गो टू द जिम जब वो एकदम खाली होता है, तो आई टेल यू लाइक 12 बजे. सो जिम जाने का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, सोने का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एंड खाना खाने का एक पर्टिकुलर टाइम होगा. एंड ऑल ऑफ दिस विल हेल्प मी हैव अ पर्टिकुलर टाइम फॉर वर्क एज वेल. तो काम करने का सुबह टाइम होगा, 7:30 बजे लॉग इन करूँगा, 12 बजे लॉग आउट करूँगा, वापस 3 बजे आऊँगा. एंड आई ट्राई कि देन आई थिंक 7 बजे लॉग आउट करूँ. सो काम का वो ये शेड्यूल रहेगा. फाइनली नो सेकेंड लास्ट पॉइंट, गोइंग फॉरवर्ड आई ऑल्सो लाइक कि
हर एक सेशन में ट्रेनिंग के टाइम पे मैं एकदम फेलियर को रीच करूँ. सो अभी भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, बट मेजरमेंट में आई लैप सम टाइम. मेरे को पता नहीं होता क्या एक्सरसाइज करना है, क्या मैक्सिमम आपका पीआर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो प्रोग्रेस बहुत अच्छे ट्रैक करना पड़ेगा. एंड उसके साथ साथ मेरा गोल होगा विद एवरी ट्रेनिंग सेशन कि मैं पीआर हिट कर पाऊँ. So that is the next change. And finally, I'll be very consistent documenting my journey with gym and other things related to it like sleep, nutrition, etc. on my YouTube channel as well as on my website. ठीक है, तो I like writing, so I'll utilize as much writing as possible. I'd utilize as much of my website as possible to document my journey. So these were some of the changes that I've noticed, and also some of the changes that I would like to see going forward. So this was I think the 6th video. I'll see you in the next one. Subscribe for more. I would continue documenting everything that goes on in my life, and not just gym. Gym is one aspect. आगे चल के मैं काम को document करूँगा, some side projects, etc. So see you in the next one, and yep, subscribe, follow this journey. Bye bye.